warm welcome and gracious hospitality. Today marks a historic day in our bilateral relations. I am pleased to note that after many years of hard work, the comprehensive economic and trade agreement between our two countries has been concluded today. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। This agreement does not merely pave way for economic partnership, but is also a blueprint for our shared prosperity. On the one hand, Indian textiles, footwear, gems and jewelry, seafood, engineering goods will get better market access in the UK. Indian agricultural products, processed food industry will find new opportunities in UK's market. This agreement will prove especially beneficial for India's youth, farmers, fishermen and MSME sector. On the other hand, people and industries in India will be able to access products made in the UK, such as medical devices and aerospace parts at affordable and attractive prices. इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए यह समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Along with this agreement, we also have reached a consensus on the Double Contribution Convention. This will inject new energy into the service sectors of both countries, especially in technology and finance. It will promote ease of doing business, reduce from India's skilled talent. These agreements will enhance investments and generate new employment opportunities in both countries. Moreover, as agreements reached between two democracies and two of the world's major economies, they will lend support to global stability and global prosperity. फ्रेंड्स, अगले दशक में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई गति और ऊर्जा देने के लिए विजन 2035 जारी किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी, डिफेंस, क्लाइमेट, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्रों में एक मजबूत, भरोसेमंद और महत्वाकांक्षी साझेदारी का रोड मैप बनेगा। Friends, to give new momentum and energy to our comprehensive strategic partnership in the coming decade, today we are launching our Vision 2035. Vision 2035 is a roadmap that will form the basis of a strong, trustworthy, and ambitious partnership in the fields of technology, defense, climate,
education, and people-to-people connect. डिफेंस और सिक्योरिटी में साझेदारी के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप बनाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इट इज अवर कमिटमेंट दैट फ्रॉम एआई टू क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स टू साइबर सिक्योरिटी, we shall create the future together. A defense industrial roadmap has also been drawn up for partnership in defense and security. Work will continue on strengthening our technology security initiative. It is our commitment that from AI to critical minerals, from semiconductors to cybersecurity, we shall create the future together. Friends, शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोल रही हैं। पिछले हफ्ते ही भारत के गुरुग्राम शहर में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ है। Friends, in the field of education too, we are writing a new chapter together. 6 universities of the UK are opening their campuses in India. Just last week, the University of Southampton inaugurated its campus in the city of Gurugram in India. Friends, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। Friends, we thank the Prime Minister and his government for strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. We are united in the belief that there is no place for double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. Friends, इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं। हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. Friends, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे। उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं। They did not just bring
curry from India, but also creativity, commitment and character. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है. Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. Friends, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है. फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है. Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं. मैं आपको भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. Thank you. Thank you. तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गर्मजोशी से जवाब देते हुए और स्वागत करते हुए इन सारे एफटीए का, और साथ ही साथ ये कहते हुए कि भारत और ब्रिटेन दोनों सिर्फ क्रिकेट से जुड़े नहीं हैं, बल्कि स्ट्रेट बैट पे बैटिंग भी करते हैं. Wonder which market cap to invest in? Motilal Oswal Flexi Cap Fund aims to invest across market caps for growth. Think equity, think Motilal Oswal. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और. थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की. सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं. तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया. उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया. जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं. देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800 208 6633 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080 685 80506 पर.
देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800208663 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। जनता के पास सवाल ही सवाल है, जवाब ढूंढने को वो देखती है न्यूज, और देखती है यहां तो सवालों का मायाजाल है। ऊपर से ये अलग फाइट है, कोई पूरा लेफ्ट तो कोई पूरा राइट है, बीच में मुद्दे के साथ कौन है, जनता को जवाब चाहिए। इसीलिए सवालों की परेड नहीं, मैं लाऊंगा खबरों की कचहरी। मैं शुभांकर मिश्रा, मेरे साथ देखिए कचहरी रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कोटा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है कि बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने किया आरोपी बेटे को गिरफ्तार। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद अभी भी जारी है। अब नांदेड़ के सेंट्रल बस अड्डे पर बने सुलभ शौचालय में एक शख्स को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था और उसने शौच के लिए 5 रुपए की मांग की थी। असम में 2 सीनियर अधिकारियों को एक महिला की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला राज्य के बुगईगांव जिले का है। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण गैंग के 3 युवक और मास्टरमाइंड जैरुन्निशा गिरफ्तार। भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाती थी ये महिला। छांगुर मामले की आंच अब पुलिस वालों पर भी गिरने लगी है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को हिट कर रहे इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड कर दिए गए। धर्मांतरण मामले में पीड़ित को धमकाने के मामले में कार्रवाई। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने ओबीसी लिस्ट पर रोक लगाने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर अर्जेंट लिस्टिंग का अनुरोध किया है। अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। 3000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और मुंबई में छापे पड़े हैं। ब्रिटेन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील पर लगेगी मुहर। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊंचाई। बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति, सूत्रों के हवाले से आई है खबर। चुना जाएगा पार्टी विचारधारा से मजबूती से जुड़ा एक व्यक्ति। रामनाथ ठाकुर को लेकर अटकलें बेबुनियाद। दिल्ली में आज मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इमामों की बड़ी बैठक में हुए शामिल। एकता और सहयोग को बढ़ावा देने बैठक का था एजेंडा। वोटर्स लिस्ट रिवीजन के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई छात्र हिरासत में। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक टकराव जारी है। आज भी इस मामले में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र के अकोला से एक वीडियो सामने आया है जहां एक महिला कार में बैठकर संभाजी ब्रिगेड पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गजानन को चप्पलों से पीट रही है। महिला ने उन पर ब्लैकमेल करने, पैसे मांगने और फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है। उन पर नौकरी देने के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। असम के निष्कासन अभियान को देखते हुए नागालैंड, मेघालय और मणिपुर ने अंतर्राज्यीय सीमा पर अवैध घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया है। बॉम्बे 2006 ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। 12 आरोपियों को रिहा करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, लेकिन हाईकोर्ट के मकोका आदि पर दी गई फाइंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सभी आरोपियों को नोटिस जारी। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक और स्कूल वैन की जबरदस्त टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोग हवा में उड़ गए। दोनों युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर राजस्थान के झालावाड़ में पानी के तेज बहाव में कार बही। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया। सभी लोग सुरक्षित। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई। सड़क टूटने से गांव का दूसरे गांव से संपर्क भी टूट गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में उधर अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को कल गंगा नदी में डूबने से बचाया गया। हुड्डा नहाते वक्त नदी के तेज बहाव में बह गए थे। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन घपलों के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर लगी मोहर। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ पटना में एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कई छात्र हिरासत में।
एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक रार, आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, संसद में गतिरोध बरकरार। अनिल अंबानी की 35 कंपनियों से जुड़े 50 ठिकानों पर ईडी की रेड, 3000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली और मुंबई में छापे। बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति, सूत्रों के हवाले से खबर, चुना जाएगा पार्टी विचारधारा से मजबूती से जुड़ा व्यक्ति, रामनाथ ठाकुर को लेकर अटकलें बेबुनियाद। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 4 बजने को है और शुरुआत करेंगे तेज रफ्तार से 100 बड़ी खबरों से। ब्रिटेन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील पर दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का लाभ दोनों देशों को मिलेगा, लोगों को किफायती दरों पर सामान उपलब्ध हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य बनाएंगे। शिक्षा, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर उन्होंने उल्लेख किया। कोटा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पीट कर हालत खराब कर दी। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद अभी भी जारी है। अब नांदेड़ के सेंट्रल बस अड्डे पर बने सुलभ शौचालय में एक शख्स को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ जड़ दिए क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। धर्मांतरण गैंग के 3 युवक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आगरा धर्मांतरण मामले में आगरा से गिरफ्तार रहमान कुरैशी ने कई राज खोले हैं। रहमान कुरैशी को क्रिप्टो करेंसी में पैसे आते थे और उससे वो ये धंधे चलाता था। रहमान कुरैशी ने यह भी कबूला कि उसको विदेश से फंड आता था। यूट्यूब चैनल से महीने में 1 लाख रुपए की कमाई होती थी। चांगुर मामले की आंच अब पुलिस वालों पर भी गिरने वाली है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के हेड को इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी सस्पेंड कर दिया गया है। धर्मांतरण मामले में पीड़ित को धमकाने में मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी चांगुर बाबा की 75 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टियां अटैच करेगी। इनमें से लोनावला की भी प्रॉपर्टी शामिल है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा की भारतीय इकाई AQIS से जुड़े एक बड़े सोशल मीडिया मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दिल्ली के हरियाणा भवन में आज मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मकसद धार्मिक समुदायों के बीच आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ाना था। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद के उमर इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और RSS के बड़े नेताओं ने शिरकत की। पटना में यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन SIR के विरोध में चल रहा है। NSUI कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा घेरने की कोशिश की। NSUI के कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत भी हुई। NSUI कार्यकर्ता ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पानी की बौछार और लाठीचार्ज किया गया। आज भी बिहार विधानसभा में विपक्ष प्रदर्शन करता नजर आया। विपक्ष के विधायक काले कपड़ों में ही नजर आए। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। कहा कि चुनाव आयोग वैसे काम नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके पास कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी के सबूत हैं। चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की इजाजत दी है। राहुल गांधी ने ये चेतावनी भी दी है कि ईसी ये न समझे कि वे कभी सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि वे बच निकलेंगे तो ये सही नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि SIR के तहत 99% मतदाता आ चुके हैं। आयोग के मुताबिक करीब 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं। दिल्ली की एक मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक में से जुड़ा विवाद सामने आया है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मस्जिद के इमाम मबीहुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाए जाने की मांग की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने नदवी को हटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मस्जिद सपा के दफ्तर में तब्दील हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अपनी पार्टी के सांसद रवि किशन पर चुटकी ले ली। कहा कि सांसद जी ने नाले पर घर बनवाया है, दिक्कत होने पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया को नियम तोड़ने के 4 मामलों में शो कॉज नोटिस जारी किया है। एयर इंडिया ने माना है कि कैबिन क्रू आराम के मामलों आदि में नियम टूटे हैं।
बिहार के हाजीपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हुई है। ये आग इतनी भयंकर थी कि धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। हादसे में ट्रक और कंटेनर के ड्राइवरों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कबाड़ कारोबारी की हत्या के बाद हंगामा हो गया। घटनास्थल पर लोग जुट गए। उन्होंने संदिग्ध आरोपी तुफैल अहमद के घर पर हमला कर दिया। पंजाब के फरीदकोट में कल शाम मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात लोगों ने एक कार पर सवार एक युवक को गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक हत्यारे जुगनू को मारने आए थे, लेकिन गलती से उसके ड्राइवर यादवेंद्र सिंह को मारकर फरार हो गए। असम में 2 सीनियर अधिकारियों को एक महिला की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ये मामला राज्य के बंगाईगांव जिले का है। महिला ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि ये दोनों उस पर फर्जी बिल पास करने का दबाव बनाते थे। इस वजह से वो काफी तनाव में थी। बेंगलुरु में एक तेज रफ्तार कार पहले एक पेड़ से टकराई और फिर एक ट्रांसफार्मर से जाकर भिड़ गई। 2 लोग घायल हैं। बंगाल की ममता सरकार ने ओबीसी लिस्ट पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर अर्जेंट लिस्टिंग का अनुरोध किया है। अनिल अंबानी की कंपनी से जुड़े करीब 50 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। 3000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली और मुंबई में छापे पड़े हैं। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक रार है। आज भी विपक्ष का प्रदर्शन का प्लान और बड़ा सवाल, क्या चल पाएगी संसद? राजस्थान के दौसा में आवारा कुत्तों की दहशत है। यहां 11 लोगों को कुत्तों ने काटा है, 5 की हालत गंभीर है। बीजेपी से ही होगा अगला उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से खबर, चुना जाएगा पार्टी विचारधारा से मजबूती से जुड़ा हुआ व्यक्ति। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच नोकझोंक हो गई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उनको सिर्फ कूद कूद कर बोलना आता है। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से कहा कि वो कूद कर बोल सकते हैं। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पिता पर आरोप लगाया गया है, अगर मैं सदन में होता तो उनका बुखार उतार देता। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक टकराव जारी है। आज भी इस मामले में विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर बड़ा पलटवार। कहा, हम शरीफ जरूर हैं लेकिन कायर नहीं। जो लोग गुंडा राज चलाने वाले हैं उनको हम करारा जवाब देंगे। आरजेडी के डीएनए में गुंडा राज और जंगल राज है। कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार के मुताबिक जगदीप धनखड़ द्वारा सोमवार को पढ़े गए विपक्ष के नोटिस में तकनीकी खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई धमाकों पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस मामले में जिन लोगों को रिहा कर दिया गया है उन्हें फिर से जेल भेजने की जरूरत नहीं है। मुंबई में अगले 4 दिन तक हाई टाइड का खतरा है, जिसको लेकर बीएमसी ने चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने भी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। बीएमसी ने बताया है कि अगले 4 दिन में ज्वार लगातार बढ़ता जाएगा, जिस सबसे ऊंची हाई टाइड 26 जुलाई को दोपहर 1:20 पर आएगी। बीएमसी ने मुंबई के लोगों से अपील की है कि वे हाई टाइड के समय समुद्र तटों के पास न जाएं। मरीन ड्राइव, जुहू, गिरगांव, चौपाटी जैसे इलाकों में सावधानी बरतें। महाराष्ट्र के अकोला से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला कार में बैठे संभाजी ब्रिगेड पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गजानन शख्स को चप्पलों से पीट रहा है। महिला ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है। उन पर नौकरी देने के नाम पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। राजस्थान के सीकर में बच्ची के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि धर्मांतरण के लिए दबाव बनाकर प्रिंसिपल ने बच्ची को छड़ी से पीटा था। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। असम में निष्कासन अभियान को देखते हुए नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई होती रहेगी। लुधियाना में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। युवक के घर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक और स्कूल वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार को 2 लोग हवा में उड़ाकर छोड़ गए।
बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में खाने में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। एक शख्स ने वेज पोंगल ऑर्डर किया था, लेकिन उसमें देखा कि कीड़ा पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कांवड़ मेला 2025 के बाद हरिद्वार नगर निगम के सामने असली चुनौती आ गई है। गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। दिल्ली में कल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक आ गया था, लेकिन आज स्थिति बेहतर है। पानी का केवल लेवल कम हो गया है। राजस्थान के झालावाड़ में पानी के तेज बहाव में कार बही, मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार को बचाया। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में सड़क बह गई। सड़क टूटने से गांव से आपसी संपर्क टूट गया है। पंजाब के मोगा में सैम नाले के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरिद्वार में अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को कल गंगा नदी में डूबने से बचाया गया। हुड्डा नहाते समय नदी के तेज बहाव में बह गए थे। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खैरुल हक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ गलत फैसले देने और देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है। यूपी के गोरखपुर में पीएससी की ट्रेनिंग हो रही है। महिला रिक्रूट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर गाली देने के साथ बाथरूम में कैमरा लगाने का आरोप लगाया है। कैमरा कांड को लेकर मिली शिकायत पर सीएम योगी ने एक्शन लिया है। सीनियर आईपीएस अधिकारियों को और अफसरों की बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड पंचायत के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जा रहे हैं वोट। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। मध्य प्रदेश के गुना में तेज रफ्तार डंपर में 2 बहनों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चलती कार में लगी आग लगने के बाद गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई है। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बाड़मेर में पेड़ से टकराई कार, टकराने के बाद कार में लगी आग, बाल बचा कार सवार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जेल से एक कैदी वसूली गैंग चला रहा था। एक अन्य कैदी के परिजनों ने वसूली के आरोप लगाए हैं, जिसमें 8 लाख रुपए का मामला दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैरोल पर बाहर आए कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कैदी पिता की हत्या के मामले में सजा काट रहा था। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाइक और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 की मौत हो गई है। उज्जैन में महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन से नाराज हैं मंदिर के पुजारी। उन्होंने कहा कि वो काली पट्टी बांधकर महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में घर में स्कूटी चार्ज करने से शॉर्ट सर्किट हो गया है। आग लगने से घर में तबाही मच गई। ग्वालियर में बारिश से उफान पर नदी नाले में गिरा बाइक, बाल बचे बाइक सवार युवक। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची पर किया हमला। घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती कराई गई है। राजस्थान के कोटपुतली में पिता ने 3 साल के बच्चे को बोरवेल में फेंका। आरोपी पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। खाटूधाम में हरियाली अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा श्याम के पवित्र कुंड में देश भर से आए श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। जयपुर में साइबर अपराधियों को फर्जी सिम की सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। नकली सिम देकर पैसे लूटता था। राजस्थान के डीग में आर्मी ऑफिसर बनकर साइबर ठगी को अंजाम देने वाला एक ठग गिरफ्तार हुआ है। कटनी में कलेक्टर दिलीप कुमार के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई। फिलहाल साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। घर में घुसकर वृद्ध महिला की चेन तोड़कर फरार है अपराधी। छत्तीसगढ़ में हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। 12 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेड़ पर आराम करता नजर आया तेंदुआ। तेंदुओं का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अरुणाचल से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चा कबूतर की वजह से रो रहा है। दरअसल कबूतर को बिल्ली ने काट लिया, जिसके बाद बच्चे ने उसको बचाया और अस्पताल ले गया। आज सुबह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच झड़प तीखी हो रही है। थाईलैंड के विमानों ने कंबोडिया में बम गिराए और कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। फिलहाल दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल थमे हुए हैं।
डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन घपलों के मामले में कंबोडिया में 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई भारत सरकार की ओर से दिए गए सुरागों पर हुई है। रूस में एक पैसेंजर विमान AN-24 हादसे का शिकार हो गया। पहले इसका संपर्क ट्रैफिक कंट्रोल से टूटने की खबर थी। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन भारत ने 5वां विकेट भी गंवा दिया। शार्दुल और जडेजा की साझेदारी टूटी। रविंद्र जडेजा आज आउट हो गए। भारत के लिए साई सुदर्शन ने 61 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 58 और KL राहुल ने 46 रनों की पारी खेली। 5 मैचों की इस रोमांचक सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है। वहीं भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट गहरी बताई जा रही है। उनको फ्रैक्चर हो गया है और वो 6 हफ्ते तक मैदान से बाहर रहेंगे। भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने NDTV से बात करते हुए कहा कि ऋषभ पंत उप कप्तान हैं और उन्हें चोट लग गई है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन फिलहाल इस मामले के आरोपियों को वापस जेल नहीं जाना होगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में एक के बाद एक 7 भयानक धमाके हुए थे। इन धमाकों में 179 लोगों की जान गई थी और 827 लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों से भी ज्यादा लोग इन ट्रेन धमाकों में मारे गए थे। लेकिन अफसोस, एक भी आरोपी को ट्रेन धमाकों में दोषी साबित नहीं किया जा सका है। निचली अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई थी। 2015 में निचली अदालत ने 13 गिरफ्तार आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया था। 5 को मौत की सजा सुनाई थी और बाकियों को आजीवन कारावास दिया गया था। जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई उनमें से एक को कोविड हो गया था, जिसके कारण उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस फैसले के खिलाफ अपील का नतीजा ये हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा फैसला ही पलट दिया है। पुख्ता सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि करीब 1.5-2 दशक बाद अगर अदालत ने सबको बरी कर दिया था तो इस पर सवाल सरकार की कार्रवाई पर और कोर्ट के रवैये पर उठ रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक है। अभिषेक, क्या अपडेट है इस पर इस समय? जी, जिस तरीके से आज बड़ा अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने इसके खिलाफ अपील की है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है, इस पे स्थगित कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई थी उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो आरोपियों को छोड़ दिया गया उन्हें तो वापस नहीं लिया जाए, लेकिन इस आधार पर, जिस आधार पर ये ऑर्डर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, उसको प्रेसिडेंट ना माना जाए या इस आधार के चलते और कई केसेस जो मकोका के चल रहे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए तुरंत इसे स्थगिति, इस पर स्टे लाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी और कहीं न कहीं इस पर स्टे लाया गया है। और इसे बड़ी सफलता जो महाराष्ट्र की सरकार मान रही है और इसी के चलते तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है। और उसमें से एक प्रतिक्रिया यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो है वो भी देते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी निरपराधी है उसको सज़ा ना की जाए और जो दोषी है उसको ही सज़ा हो। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई है और आगे चल के जिस तरीके से सुनवाई की जाएगी और महाराष्ट्र सरकार अपना और दलीलें और पक्ष और जो सबूत है वो रखेगी, उसके चलते ये पूरा सारा निर्णय लिया गया है। जी, अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस पर अजीत पवार का बड़ा बयान आया है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे थे। किसी निर्दोष को सजा मिलनी नहीं चाहिए और किसी दोषी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह बयान दिया है। अभिषेक, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा बयान है, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और जिस दिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी समय सरकार ने ये तय कर लिया गया था कि इस ऑर्डर को अपील किया जाए, चैलेंज किया जाए और जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लाया है और उसी पर
प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साफ तौर पर बताया है कि कई निरपराधी इसमें फंसे हुए थे और कितने लोगों की तो इसमें जान भी चली गई। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं ताकि किसी भी निरपराधी को सज़ा ना हो और जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए। तो बड़ा बयान एक तरीके से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कि इस केस के चलते, क्योंकि 19 साल के बाद एक निर्णय लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में आज उस निर्णय को स्टे कर दिया गया है। और उसके बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है और ये बड़ा बयान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का साफ तौर पे कि किसी भी निरपराधी को सजा ना हो और जो दोषी है उनको सजा दी जाए। जो दोषी है उसका फैसला तो कोर्ट करेगी ना, उसका फैसला राजनीति की अदालत